of spine surgery in Bangladesh, who introduced us with another legend of your son of the soil, a great endoscopic surgeon, Dr. Torun Chabra sir. And when we come here from Delhi airport to Haryana, all the natural things, the beauties, the roads, the people's spiritual everywhere were totally satisfied. And we are very much enthusiastic with the people of Haryana. And in the last few days, we learned a lot of new techniques of endoscopic spine surgery, which we are not accustomed previously. And Dr. Torun Chabra trained us in so great way that we can practice in Bangladesh, we believe, and we can serve our nation, our people. And I believe Bangladesh and India is the two sons of the same mother, Bharat Mata. Encourage us in different way. You came here. I also give the thanks from core of my heart and also from the 17 crore people of Bangladesh to you. Love, respect, and we also invite you in Bangladesh. This type of press conference will be occur in Dhaka also and other places of Bangladesh also, and we want to invite Torun Chabra sir to Bangladesh as well as you, and this is my invitation from our nation. One thing I want to mention, Torun Chabra, a lot of doctors here, they are the flowers of different fragrance. But I think Torun Chabra is the rose of this city. And his patient dealings, his surgery, we learned from him a lot of things. I'm very much grateful to him, grateful to you. Thanks to everyone. Thanks again. This is Dr. Mahbub from Bangladesh. I am working as assistant professor in the National Institute of Traumatology and Orthopedic Rehabilitation, Dhaka. I plan to do endoscopic spine surgery 3 years back. Then I visited a lot of places. I attended some workshop, that is cadaveric workshop. But yet I cannot start. But before some days, my mentor, Professor Mohammad Shalom, now the President of Spine Surgery Bangladesh, he introduced us with Dr. Torun Chabra, and we started here on 20th February. I think it's a learning process, and Torun Chabra is the magician of endoscopic spine surgery. I learned here from a lot. Though I hope I can start the surgery when I will go my places. All of you are invited in my places to Bangladesh, how we are doing for the people of Bangladesh, and for this reason, I am very much grateful to Dr. Torun Chabra as well as India. Thanks. गंगा हॉस्पिटल फॉर स्पेशल ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही हमारे जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमें स्पाइन सर्जरी नहीं करवानी। ऐसा इसलिए है कि पहले जब भी ये स्पाइन की कोई भी सर्जरी होती थी तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसकी प्रॉब्लम इतनी थी कि उसमें मृत्यु तक का खतरा रहता था, हाथ पैर चलने का खतरा रहता था। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, ऑप्टिक्स के अंदर जर्मनी ने एडवांसमेंट करी, इंस्ट्रूमेंटेशन में स्टरलाइजेशन टेक्निक आगे बढ़ी, तो मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी का जन्म हुआ। ये शुरुआत होती है यूएसए में डॉक्टर एंटनी यंग, जिन्होंने स्पाइन सर्जरी के अंदर रेवोल्यूशन लाया। उन्होंने एक छोटे से बिल्कुल मिनिमल इंसिजन से एंट्री करी स्पाइन के अंदर और अपना कैमरा कमर के अंदर डाला, और उन्होंने जाना कि हम जो कमर को खोल के करते हैं वह हम बिना खोले कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्निक इंडिया में डॉक्टर सतीश चंद गोरे, डॉक्टर दातर लेकर आए, और डॉक्टर जीफेंग जैंग चाइना से। मैंने अपनी ट्रेनिंग बीजिंग डॉक्टर जीफेंग जैंग के पास करी है और डॉक्टर याटवा वोंग हांगकांग से करी है। वहाँ ये मैंने टेक्निक्स के बारे में जाना। जब मैं हिसार में अपनी सेवा देने आया सेवक सभा हॉस्पिटल में, तब मैं पेशेंट को बोलता
कि आपकी स्पाइन की सर्जरी करेंगे तो वो मना कर देते। तो मैंने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो मैंने काम सीखा था वो उनको मंगवाया मैंने बाहर से और ये सर्जरीज़ करनी चालू करी। अभी मैंने सैकड़ों ऑपरेशन कर दिए हैं इसके और ये देखा कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाल ही में मैं चेक रिपब्लिक में डॉक्टर शाह आलम जो कि फादर ऑफ स्पाइन सर्जरी बांग्लादेश के माने जाते हैं, प्रोफेसर सर से मेरी बात हुई। उन्होंने मेरे को बोला कि क्या आप हमें इस टेक्निक के बारे में बता सकते हैं और हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतने सीनियर कार्य कर लिया और सर का फ़ोन आता है कि डॉक्टर सरवार, डॉक्टर पलाश और डॉक्टर महबूबुर रहमान दे आर कमिंग टू इंडिया। तो मैंने सारी तैयारियां शुरू कर ली। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे पेशेंट्स का जिन्होंने हम पर विश्वास किया है, जिनका ऑपरेशन कर कर हम सफल हुए हैं और जब वो खुश होते हैं तभी हमारी खुशी है। हमारे बीच में अभी 2 पेशेंट्स बैठे हैं, विनोद जी लोहारू से आए हैं और हमारे पंजाब से रमेश्वर जी हैं। तो इन पेशेंट्स की जो विश्वास है हमारे पर, उसको लेकर हम आगे बढ़े और फिर अगला ख्याल आया कि ये टेक्निक हमारे तक रखें या लोगों तक जाए। अगर इसका प्रचार नहीं होता, अगर मुझे कोई नहीं सिखाता तो मैं नहीं कर पाता और मैं नहीं कर पाता तो पेशेंट्स तक ये टेक्निक नहीं पहुंचती। ऐसी सोच रखकर मैंने अपने बांग्लादेश भाइयों को ये टेक्निक सिखाने का प्रण लिया और जितना मुझे आता था मैंने ये सोच लिया कि जो मुझे आता है मैं इनको इन 8 दिनों में दे दूँगा। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि ये जाकर वहाँ पर ये टेक्निक कर सकते हैं। कल हमारे एक डॉक्टर समीर जो केरला से आए थे, उनको जाना पड़ा, उनको भी मैंने बहुत अच्छे से गाइडेंस दी और इंस्ट्रूमेंटेशंस के बारे में, सर्जरी के बारे में बताया। मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ मीडिया को, विनोद जी को, उपल सर को और सारे मीडिया को जो कि हमारी ये आवाज़ लोगों तक पहुँचाएंगे। जो ये डर है इसको दूर करना है और हमें बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, दूसरे प्रांतों के साथ अच्छे संबंध रखने हैं ताकि भाईचारा बढ़े, आपस में अपने आइडियाज़ के एक्सचेंज हो। और डॉक्टर जो बांग्लादेश से हैं इन्होंने मुझे स्पेशल बोला कि जितने भी प्रेस के जो बंदे हैं हम इनको इनवाइट करना चाहते हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और डॉक्टर शाह आलम बोल रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए वो एयर फेयर का भी अरेंजमेंट करेंगे। नंबर 1 इन endoscopic spine surgery and China and Hong Kong, they are doing very good job in minimal invasive spine surgery। और इंडिया में भी, इंडिया अब 3rd नंबर पर आ चुका है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में। आने वाले समय में ओपन स्पाइन सर्जरी ऑब्सोलीट हो जाएगी, सारा काम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से संभव है। चर्चा करते हैं लोग आपस में, तो ये कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं करना क्योंकि ज़्यादातर कामयाब नहीं हो पाते हैं इस तरह की। सर उनकी ये धारणा ठीक है क्योंकि पहले ऐसे चीज़ें हुई हैं कि ऑपरेशन करने के दौरान उनकी नस कट जाती थी, मेरुदंड में चोट आ जाती थी जिससे पैरों का चलना रुक जाता था। लेकिन इस टेक्निक में पेशेंट जाग रहा होता है, पेशेंट अवेक होता है, लोकल एनेस्थीसिया में ये काम होता है तो पेशेंट के पैर चलते रहते हैं। हम साथ के साथ पेशेंट से बात कर सकते हैं कि उसके पैर कैसे चल रहे हैं, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो ये जो डर है इस टेक्निक से बिल्कुल कम हो जाता है। सर ये एक डे केयर प्रोसीजर है, पेशेंट 1 से 2 घंटे का प्रोसीजर चलता है ये और पेशेंट सेम डे घर जा सकता है, लेकिन 24 आवर्स के लिए उसकी ऑब्जर्वेशन कर ले तो बहुत अच्छा रहता है। तो हमारा एक प्रोटोकॉल है कि मिनिमम 24 आवर्स उनको एक बार रखते हैं। पेशेंट चल के ही आता है ऑपरेशन थिएटर से। अगर हम ट्रांसफॉर्मल एंडोस्कोपी करते हैं इंटरलेमिनर में 6 घंटे के बाद वो चलने लग जाता है। तो सब कितनी केयर कर चुके हैं बाहर भी और यहाँ भी? सर मैं हांगकांग के अंदर, मैं वहाँ का फ़ेलो था, हैंड्स ऑन ट्रेनी था, तो मैंने वहाँ पे 250 सर्जरी करी थी क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग जो है वो इंडियन फ़ेलोज़ के लिए बहुत फेवर करता है क्योंकि इंडियन फ़ेलोज़ बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं। वो वार्ड का काम भी कर लेते हैं, वो पट्टी भी कर देते हैं, तो वो हैंड्स ऑन चांस देते हैं। बीजिंग में मैंने 50 सर्जरीज़ करी, यहाँ पे आने के बाद 400 से ज़्यादा सर्जरी कर चुका हूँ मेरे अस्पताल में। डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा पेशेंट सबसे पहली बात पूछता है कि खर्चा कितना आएगा, तो लगभग इस तकनीक में खर्चा कितना का है? सर इस टेक्निक में खर्चा अराउंड 80-1,000 रुपये खर्चा है और अगर जो हम स्कोप्स हैं अगर वो थोड़ा महंगे स्कोप्स रहते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन ज़्यादा रहती है तो 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है।
लेकिन इसको कम में भी किया जा सकता है, संभव है, ये कम में किया जा सकता है। एक दर्शक पूछ रहा है, लाइव चल रहा है, तो वो कह रहा है कि आयुष्मान भी क्या काम करता है इसमें? मैंने ये सर्जरी आयुष्मान में करी हैं। बहुत सारे जो हमारे पेशेंट्स हैं आयुष्मान से ये लाभ उठा चुके हैं। विनोद जी लोहारू से हैं, उनका भी आयुष्मान में किया है। आयुष्मान भारत सरकार, मोदी सरकार हमारे लिए काफ़ी कुछ कर रही है और उन्होंने जो किया है पेशेंट्स के लिए, मैं नहीं समझता कि वो कोई और कर सकता है। कि पेशेंट जिसके पास पैसे नहीं है और वो दर्द में तड़प रहा है, वो कमा नहीं सकता और सरकार उसकी सहायता कर दे तो वो अपना काम कर सकता है, पैसे कमा सकता है। कितने कर चुके हैं आयुष्मान में? आयुष्मान में सर अभी मेरा नंबर है 143 सर्जरीज कर चुका हूँ। सरकार की ओर से पेमेंट आई है? सर सरकार की तरफ से पेमेंट आई है लेकिन वो डिले है। मेरा अभी तक 70 लाख का काम हुआ है और मेरे पास अभी 44 लाख आए हैं, लेकिन थोड़ा डिले करके देती है सरकार। मेरी उससे रिक्वेस्ट है सरकार से कि थोड़ा पैसा अगर जल्दी आ जाए तो हमारे महीने के जो फाइनेंशियल जो हमारे को मीट्स करनी पड़ती हैं वो जल्दी हो जाए। एक अखबार के हवाले से खबर थी कि 150 हॉस्पिटलों का आयुष्मान का पैसा रुका हुआ है और वो इस स्कीम में काम करने से क्या आपका हॉस्पिटल भी है? देखो सर, मेरे 25 लाख के आसपास पैसा रुका हुआ है, लेकिन मैं किसी पेशेंट को मना नहीं करता, क्योंकि अगर पेशेंट खर्च नहीं कर पाता और मेरे पास ये स्कीम है तो वो पैसा रुक जाता है एक बार। लेकिन मुझे आशा है कि मोदी सरकार ऐसा नहीं करेगी, वो हमारी समस्याएं सुन रही है और वो पैसा हमारे को जल्दी करवाएगी, मुहैया करवाएगी। डॉक्टर साहब, जो रीढ़ की हड्डी की अगर बात की जाए, किस एज के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं? कितने % लोगों में ये रीढ़ की हड्डी की नसों की दिक्कत है? सर देखिए, इसमें 2 टाइप की दिक्कतें होती हैं। एक डिस्क से संबंधित दिक्कतें होती हैं जो कि यंग बंदों में ज़्यादा होती हैं। 30 साल से 50 साल के अंदर डिस्क की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। 50 साल के बाद जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस, मतलब ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, मैं ज़्यादा देर चल नहीं सकता, पिंडियों में भारीपन आता है तो मुझे बैठना पड़ता है। ये जो बुढ़ापे की दिक्कतें होती हैं, ये लंबर कैनाल स्टेनोसिस की दिक्कत होती हैं। यंग बंदे में दिक्कत आती है कि कमर में दर्द आ रहा है और पैर में रेडिएट कर रहा है, वो डिस्क स्लिप जिसको बोलते हैं, शियाटिका, वो वाली प्रॉब्लम है। तो ये किसी एज में भी हो सकती हैं स्लिप डिस्क। यंग एज के अंदर ज़्यादा होती है, ओल्ड एज में लंबर कैनाल स्टेनोसिस। डॉक्टर साहब, एक ऑपरेशन हुआ यहाँ की जो थी ना, वो आर्टिफिशियली उसको जोड़कर उसको बना सके? सर देखो, जो नस का जो डैमेज होता है वो परमानेंट डैमेज हो जाता है अगर नस कट जाती है तो। इस एंडोस्कोपी सर्जरी के अंदर सबसे बड़ा जो टेक्निक है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम सब देख रहे होते हैं कैमरे से, पेशेंट अवेक होता है, उसकी टांगें चल रही होती हैं, उसकी सेंसेशन इंटैक्ट होती है, तो पेशेंट से बात करके जब ये काम करते हैं तो ये इंजरी नहीं हो सकती। अब आपका सवाल है सर, एंडोस्कोपी के अंदर जो लर्निंग फेज़ होता है वो थोड़ा रहता है। जो स्टार्ट करते हैं उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन का मतलब डिस्क पूरी नहीं निकल पाती। कई बार पेशेंट की एनाटमी ऐसी होती है कि उसमें रिकरेंस हो जाती है। पेशेंट परहेज़ ना करें तो इसमें दोनों पेशेंट का और डॉक्टर का एक्सपीरियंस दोनों मैटर करता है। सर्जन एक्सपीरियंस होता है तो कॉम्प्लिकेशन काफ़ी कम हो जाती हैं। पेशेंट्स भी अगर सही बातें फॉलो करें तो कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हो जाता है। कितने दिन ट्रेनिंग ले चुके हैं? We are here from 20 to 29. How much you have gained? Experience, how much you have gained? Excellent experience we have. We have already done around 10 cases from 20 to this day. Every cases we are observing. Dr. Tarun Sabra learned us the tricks, which one is the tricky point, which is the pitfall. That's why I have already mentioned I started for 3 years to learn this procedure. I've been different hands-on, but this experience is very good, excellent, because I feel I have seen a lot of video from the Tarun Sarva is excellent, and this is he asked us from the day starting day that this is very simple. You just follow the tricks, which is the dangerous point. That's why we have learned a lot of things from last 4 or 5 days. I think next 5 days we will be learn more. Thank you, sir. Yeah. They have made in India. They have purchased and they will start the endoscopy there. जैसे सुप्पल साहब ने बताया कि बांग्लादेश के घूमे से यहाँ डॉक्टर जो आए हैं
ये अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है इस साहब जैसे एक छोटे शहर के लिए। रास्ते में दिल्ली भी था इन्होंने, और इनके जो सीनियर डॉक्टर हैं जिन्होंने इनको भेजा है, उन्होंने बड़ी मनन करके अध्ययन करके पाया कि डॉक्टर तरुण जो है इसके लिए फ़िट हैं, और डॉक्टर तरुण से उन्होंने बात भी की और उसके लिए वो तैयार भी हो गए। सबसे बड़ी बात है आज के टाइम पर्टिकुलरली मेडिकल प्रोफेशन में जल्दी से ज्ञान जो है कोई बांटना नहीं चाहता, तो डॉक्टर तरुण ने उनको मौका दिया, उनके हाथ से केसेस करवाए। तो ये मुझे भी फ़ख्र है, मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा इतना योग्य है। जब ये डॉक्टर धरती पे आए तो हिसार की धरती पे आए तो तभी मुझे मेरा जो है सीना चौड़ा हो गया, और मैं जो है प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि डॉक्टर भी जो है ना अपने इस लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी कुछ सीख करके और ये अपने देश में भी अपने नागरिकों का कल्याण करेंगे। इससे हमारे दोनों देशों के जो संबंध हैं, रिलेशंस हैं, और भी स्ट्रॉन्ग होंगे, और मेडिकल जो नॉलेज है का उसका आदान प्रदान आम जनमानस के लिए, दोनों देशों की जनता के लिए बड़ा लाभान्वित होगा। और मीडिया के लोगों का भी बड़ा बड़ा हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत अपना कीमती टाइम निकाल करके और इस इवेंट को कामयाब बनाया है। तो इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कोई भी आपके जो शक हैं, क्योंकि आप लोग गांव से भी जुड़े हैं, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, तो मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों तक ये बता सकता है भी ये बीमारियां हैं और इनका इस तरीके से इलाज भी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार तो एक पेशेंट 80 साल की बूढ़ी दादरी से आई थी, मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ हर एक ने मना कर दिया। हिसार के क्या दिल्ली के सर्जन ने भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो उसके इस पोर्शन में इसको शायद L12 बोलते हैं, D12 बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब ने एक तरफ उनके यहाँ दोबारा डाला, उसको अप किया क्योंकि हड्डी काफ़ी वीक होती है इस उम्र में, दूसरी तरफ से सीमेंटेड किया। तो वो नीचे हम उसको स्ट्रेचर पर ले गए थे, जब वापस आई तो वो चल के आई। और कभी उसका बेटा जो है ना वो वहाँ घर में काम करते हुए, पूरा काम करते उसकी वीडियो जो है ना हमारे को भेजता रहता है, शेयर करता रहता है, और वो दादरी से भी काफ़ी पेशेंट भेज चुके हैं। इसी प्रकार अशोक गर्ग हमारे जो कमिश्नर हिसार में थे, उनके मौसा जी के साथ भी सिमिलर पोजीशन थी, CH ग्रुप के थे, और डॉक्टरों ने उनको MRI करके दवाइयाँ दे करके घर भेज दिया। उसको डर लगता है इस उम्र में स्पाइन को क्यों छेड़ा जाए, तो सिमिलर टेक्निक के द्वारा वो अब सेक्टर 14 में रहते हैं, बिल्कुल खुश हैं और बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो ये सर्जरी जो है काफ़ी सेफ़ है और इसके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं, और पेशेंट बिल्कुल जाग रहा होता है। पेशेंट जो है, क्योंकि पेशेंट को काफ़ी हद तक पूछते हुए ये डॉक्टर लोग जाते हैं आगे, कहीं उसको पेन हुआ तो पीछे हट जाते हैं, फिर आगे देखते हैं, फिर कहीं कैमरा भी है, उसके बावजूद पेशेंट की अवेयरनेस भी बड़ी ज़रूरी है, उसका रिस्पॉन्स भी बड़ा ज़रूरी है। तो इस कुल मिला के एक अच्छा एक्सपीरियंस है, और आने वाला जो टाइम है वो एंडोस्कोपी का ही है। सब हड्डी जो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, क्या वो भी सीधी करने का प्रोसेस है? सर वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी थी तो कुबड़े बच्चों के ऊपर हमने किया था, तब हमारे बॉस कैलकाटा से डॉक्टर उज्जवल देवनाथ आए थे। हमने मिलकर इसी हॉस्पिटल में, जब ये हॉस्पिटल 1 महीने का ही था, तब हमने वो शुरुआत किए थे। यहाँ पे 2 सक्सेसफुल स्कोलियोसिस बोलते हैं उसको। ये इन्फॉर्मेशन अभी आपने जो पूछा है बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि 18 मार्च आने वाली 18 मार्च को हम ये सारे ऑपरेशंस निःशुल्क करेंगे। जिन किसी को भी जिस बच्चे को कुबड़ापन है, जो कि 18 साल से छोटे बच्चे हैं, उनका हम कैलकाटा में ऑपरेशन स्ट्रेट स्पाइन के थ्रू ये फ्री ऑपरेशन करेंगे। अगर ये मैसेज जाता है तो वो मेरे को एनरोल करवाएं, और कैलकाटा में हम 18 मार्च को ये स्टार्ट करेंगे। तो ये पॉसिबल है कि कुबड़े बच्चे का इलाज हो जाता है, सेफली हो जाता है। उसके लिए एक और टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं न्यूरो मॉनिटरिंग, जो पैरों के अंदर हम सुइयाँ डाल देते हैं, और जब हम कमर खोल के ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो पैर जो चल रहे हैं उसके अंदर सिग्नल्स हम कंप्यूटर पे देखते हैं कि L3 में डाला तो L3 की जो फ्रीक्वेंसी है वो ठीक आ रही है या कम होगी। अगर कम आती है तो हम स्क्रू वापस कर लेते हैं।
तो ये जो न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्निक है वो भी हमारे पास रहेगी। डिफरेंट कंपनीज़ की स्पॉन्सरशिप रहेगी, तो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कुबड़े बच्चों का इलाज 18 मार्च को होगा, उसकी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। कैलकाटा में स्पाइन एक फ़ंड है जिसको अमेरिका और भारत दोनों स्पॉन्सर करता है, और लोकल स्पॉन्सर्स भी करते हैं, डोनेशंस भी आती हैं। तो हमारे पास कम से कम 2 करोड़ का बजट रहता है, और हम 12 से 15 बच्चों को सीधा कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में। और फ़ॉरेन से भी, इटली से डॉक्टर कैसिकोला आ रहे हैं, एंड इंडिया के भी काफ़ी डॉक्टर्स जा रहे हैं। हरियाणा से मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ उनको। तो अप एंड डाउन का कोई खर्चा भी देंगे पेशेंट गरीब है तो? कर सकते हैं सर। एक पेशेंट के लिए पिछली बार किया था, वो आ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने ट्रेन का प्रस्ताव रखा, तो ट्रेन का खर्चा कर दिया। रहने का वहाँ सब फ्री हो जाएगा, खाने का फ्री हो जाएगा, और ऑपरेशन से रिलेटेड कोई खर्चा नहीं होगा।